اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، ٹخنوں سے پنڈلیوں تک بھی رسی بندھی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ہونٹوں پر چوڑا ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ تہہ خانے میں یکایک روشنی ہونے سے میری آنکھیں چند ثانیوں کے لیے چندھیا گئی۔ میری بصارت بحال ہوئی تو جہانگیر حیرت اور مسرت سے دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے اختیاری کے عالم میں اپنی جگہ چھوڑی اور دوڑ کر اس کے بے دست و پا وجود سے والیانہ انداز میں لپٹ گیا۔ جہانگیر نے اپنے حلق سے غوں خاں کی تیز آوازیں نکال کر اپنے بدن کو جھٹکے دیے۔ فوری طور پر بات میرے پلے نہیں پڑ سکی، لیکن لمحہ بھر بعد مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور میں نے اس کے ہونٹوں پر چپکا ہوا ٹیپ ایک جھٹکے سے اکھاڑ دیا۔ ٹیپ کے ساتھ اس کے قدرے بڑے ہوئے شیف کی جڑیں بھی اپنی جگہ سے ہل گئی ہوں گی۔ دہانہ آزاد ہونے کے بعد اس کے ہونٹوں سے پہلی آواز ایک سسکاری کی صورت میں آزاد ہوئی۔ پھر اس نے بے اغوا کنندگان کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ تم ٹوٹ پھوٹ سے تو محفوظ ہو نا؟ میں نے اس کے بدن کو ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ رسیاں کھولو یار۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کر کے گھرایا۔ رسیوں کی بنچیں بہت سخت تھیں۔ میں ان میں الجھا ہوا تھا کہ اول خان اوپر سے ایک چھری ڈھونڈ کر لے آیا اور اس نے رسیاں کاٹ کر اس کے ہاتھ پیر بھی آزاد کر دیے۔ خدا کی پناہ، وہ مسیری پر ہی کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی میں یوں ہی بستر پر پڑے پڑے مر جاؤں گا۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال ہے۔ میں نے سہارا دے کر اسے مسیری کے لچکدار گدے سے فرش پر اتار لیا۔ اول خان نے تہہ خانے میں موجود چھوٹے ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ جہانگیر نے مسیری کے کونے پر ٹک کر گھٹا گھٹ وہ چھوٹی بوتل خالی کر کے مسیری پر اچھال دی۔ تمہارے ساتھ یہ چوہا کون ہے؟ اس کے چہرے پر پھٹکار کیوں برس رہی ہے؟ قاسم کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے سوال کیا۔ یہ اس گھر کا مظلوم مالک ہے، میں نے اسے بتانا چاہا، لیکن جہانگیر نے میری وہ بات ادھوری سنتے ہی قاسم کا گریباں پکڑا اور اس کے چہرے پر وحشیانہ انداز میں ٹکر رسید کر دی۔ تہہ خانے کی بند فضا قاسم کی چیخ سے گونج اٹھی۔ اس کے ناک سے خون کی کئی پتلی پتلی دھاریں بہہ نکلی تھیں۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر اسے مزید تشدد کا نشانہ بناتا، اول خان جھپٹ کر ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ میں بدقت جہانگیر کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو سکا کہ اس وقت قاسم ہمارے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ اسے برے حال کو پہنچانے والے دوسرے تھے، جن میں سے ایک ہمارے قبضے میں تھا، دوسرے کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا تھا۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ دوسرا آدمی قاسم کے کارخانے میں ملازم تھا۔ قاسم اتنا سلجھو ثابت ہوا کہ اپنی آستین سے ناک سے بہنے والا خون صاف کر کے مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پیشکش کی کہ اوپر کچن ریفریجریٹر میں موجود اشیاء خور و نوش سے جہانگیر اپنی شکم سیری کر لیں، لیکن میرے ذہن کے کسی کوشے میں صوبراج کی طرف سے مسلسل خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس کے لیے میرا اور جہانگیر کا معاملہ بہت اہم تھا۔ وہ کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے آنے سے قبل جہانگیر کا وہاں سے نکل جانا بہت ضروری تھا۔ کسی فوری تصادم کی صورت میں اسے سنبھالنا دشوار ہو سکتا تھا۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ تہہ خانے سے نکلے۔ میں نے قاسم کو بتا دیا تھا کہ اس سے کچھ اہم گفتگو باقی رہ گئی تھی، اسے بھی ہمارے ساتھ چلنا تھا۔ وہ اس وقت موم کی ناک بنا ہوا تھا، خاموشی سے ہمارے ساتھ نکلتا چلا آیا۔ ہم سینے طے کرنے کے بعد لابی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ لمحہ بھر بعد اسی ہتھیار سے دوسرے فائر کی آواز آئی، پھر کسی گاڑی کے انجن کی پرشور آواز سنائی تھی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی بدحواسی میں گیر بدلے بغیر اپنی گاڑی کو ہوا کے دوش پر اڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلطان شاہ کیا ہو رہا ہے؟ اول خان نے چیخ کر پوچھا۔ قاسم کا گھر زیادہ وسیع و عریض نہیں تھا۔ فوری طور پر جواب آ گیا، جلدی باہر آؤ، آ گیا ہے۔ میں نے اسے بھگا دیا۔ میں دوڑتا ہوا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ برآمدے میں جلے ہوئے بارود کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی اور سلطان شاہ اپنا پستول ہاتھ میں لیے پھاٹک کی کھلی ہوئی سیلی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ چوکیدار اس کے پیچھے سہما ہوا کھڑا تھا۔ جہانگیر کے ذہن پر اپنی افتاد سوار تھی۔ وہ اس قابل نہیں ہو سکا تھا کہ ان الجھنوں کو فوری طور پر سمجھ سکے۔ وہ مسعود سے انداز میں اول خان کے ساتھ چلا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے تیز اور پرجوش لہجے میں اپنی کہانی سنانی شروع کر دی تھی۔ وہ چوکیدار کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ قاسم کے دروازے پر کوئی گاڑی آ کر رکی۔ ہارن کی آواز سن کر چوکیدار نے آئینی پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھولی تو سلطان شاہ بھی اس کے پیچھے موجود تھا۔ آنے والی گاڑی میں کل 2 نفوس موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اجنبی چہرہ براجمان تھا۔ اس کے برابر والی نشست پر ایک باریش اور توانا شخص موجود تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی اور گھنی مونچھوں کے باوجود وہ اپنی مڑی ہوئی ناک کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا۔ وہ ادب سے اس کی طرف بڑھا۔ سلطان شاہ کے لیے وہ بہت نازک لمحہ تھا۔ ایک رسوائے زمانہ مجرم اس کی دسترس میں تھا۔ جس شخص نے ملک کی ساری ایجنسیوں کو نچایا ہوا تھا، اسے وہ پل بھر میں خون میں نہلا سکتا تھا۔ اس سے صبر نہ ہو سکا۔ اس نے پھرتی کے ساتھ اپنا پستول نکالا اور تاک کر صوبراج پر گولی چلا دی، مگر چوکیدار کو بچانے کے چکر میں اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ صوبراج کی گاڑی کا انجن چل رہا تھا۔ پہلی گولی چلتے ہی ڈرائیور نے گاڑی ریورس کی۔ سلطان شاہ نے گاڑی کے ٹائر پر دوسرا فائر کیا، لیکن گاڑی نہ رک سکی۔
ड्राइवर अगला टायर पटने की परवाह किए बगैर गाड़ी को आगे दौड़ाता ले गया। यह बहुत बुरा हुआ, वो यहाँ आ गया था तो उसे बचकर नहीं जाना चाहिए था, मैंने काफी अफसोस मलते हुए कहा। तुम्हें दूसरा फायर गाड़ी के टायर के बजाय इन दोनों पर करना चाहिए था। सोबराज ड्राइवर की ओट में हो गया था। सुल्तान शाह ने मेरी बात काट कर अपनी सफाई पेश की। मैं गोली चलाता तो सोबराज का कुछ नहीं बिगड़ता, ड्राइवर हलाक या जख्मी हो जाता, गाड़ी रुक जाती, तुम्हें वक्त मिल जाता, हम लोग बाहर आ जाते, मैंने तेजी से कहा। जरा सा वक्त मिल जाता तो बहुत कुछ हो सकता था, वो इतनी आसानी से ना निकल पाता, बस गलती हो गई। सुल्तान शाह ने अपनी नजरें झुकाकर मुजरिमाना एहसास के साथ कहा। यह बात मेरे जहन में नहीं आई थी, इंसान से गलती हो जाती है। अव्वल खान ने नरमी से कहा, किसी जोर आवर हरीफ को अचानक अपने सामने पाकर बड़े बड़ों के हाथ पैर फूल जाते हैं, हर शख्स के आसाब फुलादे नहीं होते, अब यहां से निकलने की फिक्र करो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं जानता था कि सोबराज दोबारा इधर आने की हिम्मत नहीं करेगा। वह बहुत चालाक और बुज़दिल मुजरिम था। मैदान साफ पानी की तवक्का में इधर आ गया था। 2 गोलियों का सामना करने के बाद इसमें इतना हौसला नहीं था कि वो कोई बड़ा खतरा मोल लेता। घर में ताला डाल दो, मैंने चौकीदार से तहकमाना लहजे में कहा। कोई भी आ जाए, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। कासिम ने जोर जोर से सर हिलाकर मेरी तायद की और गाड़ी की पिछली सीट में घुस गया। जहांगीर को इस वक्त आराम की जरूरत थी। अव्वल खान ने उसे अगली निशिस्त पेश कर दी और चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। गाड़ी चलते ही अव्वल खान ने कुर्बो जवार की गलियों का एक चक्कर लगाने की तजवीज़ पेश की। वो इस खुशगुमानी में मुब्तला था कि वो दोनों कहीं रुक कर अपनी गाड़ी का टायर बदल रहे होंगे। मेरी दानिश में वो वक्त की बर्बादी थी, लेकिन इस वक्त हमें कोई फौरी काम दरपेश नहीं था। मैंने गाड़ी अगली गली में मोड़ ली। काफ़ी देर तक आस पास की गलियों में बेनीलो मराम भटकने के बाद मैंने गाड़ी शाहराह फैसल पर निकाल ली। सलमा का क्या हाल है, वो कहाँ है? अचानक जहांगीर को अपनी बीवी का ख्याल आ गया। उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसे मैं अपने घर ले आया था, मैंने कहा। क्या वाकई उसकी हालत बहुत ख़राब है? जहांगीर ने हैरत से सवाल किया। उससे बात कर लो, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। हम लोगों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। गाड़ी में तुम्हारा एक मददगार भी मौजूद है, जहांगीर ने चंद लम्हों तक सोचने के बाद कहा। जब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, कहीं मुलाकात हो जाएगी। घर नहीं, अब तुम स्टेशन 4 चाहोगे। अव्वल खान ने 2 टोक अल्फाज में वो फैसला सादिर करके मुझे हैरान कर दिया। क्यों? जहांगीर ने सवाल किया। क्या वहाँ कोई ज़रूरी काम है? तुम्हारे लिए अब वही सबसे बेहतर और महफूज ठिकाना है। अव्वल खान भी कासिम की मौजूदगी की वजह से खुलकर बात करने से झिझक रहा था। तुम्हारी बीवी को भी आर्जी तौर पर वहीं बुला लिया जाएगा। किसी मुतबादल जगह का बंदोबस्त होने तक तुम दोनों मेरे मेहमान रहोगे। लेकिन क्यों? जहांगीर ने एहतजाज किया। मैं अपने घर में अपनी बीवी के साथ ज्यादा खुश रहता हूँ। मैं सलमा को लेकर इसी वक्त घर जाने को तरजीह दूंगा। हम दूसरी बार तुम्हारे अगवा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैंने हंसते हुए इस बहस में दखल अंदाजी की। फिलहाल इतना काफी है, बाकी बातें स्टेशन 4 पर होंगी। जहांगीर मेरा इशारा समझ गया और उसने खामोशी इख्तियार कर ली। शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजाब से गुजरने के बावजूद वो मामले की नज़ाकत को समझ रहा था। मेरी ये बात हैरान कुन थी कि इसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया था, और ये बात इस एतबार से अच्छी थी कि मैंने कासिम को आखिरकार आज़ाद करने का इरादा कर लिया था। स्टेशन 4 पर हिफाजी तहवील के चंद रोज़ गुजारने के बाद वो अपने मामूलात की तरफ लौटता तो किसी से यह दावा नहीं कर सकता था कि वो डैनी को देख चुका है। घर की तरफ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया गया। जहांगीर सबकी मौजूदगी में अपनी बीवी को फ़ोन करने से कतरा रहा था। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि आपस में दिन रात की तू तकार के बावजूद जब वो फ़ोन पर एक दूसरे की आवाज़ें सुनेंगे तो दोनों ही जज्बाती हो जाएंगे। जहांगीर किसी को अपनी इन अहमकाना हरकत और बातों का गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैंने मोबाइल फ़ोन सुल्तान शाह को दे दिया था कि वो घर पर मौजूद खवातीन को जहांगीर की सही सलामत वापसी की खुश खबरी सुनाते। स्टेशन 4 पर सबसे अहम मसला जहांगीर की बहाली का था। अव्वल खान ने दौरान सफ़र ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके अपने आदमियों को हदायत दे दी थी। इनकी रोशनी में एक आरामदेह और खुशादा कमरा उसकी मेज़बानी के लिए तैयार कर लिया गया था। एक आदमी सलमा को हमारे घर से वहां लाने के लिए गया था। कासिम को इसी बैरक पर उतार कर अव्वल खान ने अपने आदमियों के हवाले कर दिया जहां शीदा कैद था। कासिम भी STF का कैदी था, लेकिन इसके रज़ाकाराना ताउन की रोशनी में उसे बिस्तर और पंखे वगैरह की मराहत देने का फैसला कर लिया गया था। इसे जहांगीर के बारे में गुफ्तगू चलती रही थी। सोबराज और उसकी सरगर्मियों का मामला हनूज बाकी था, वो मरहला बाद में तय किया जा सकता था। कासिम को उतारते हुए जब मैंने जहांगीर को यह बताया कि उसे अगवा करने वाला एक शख्स इसी बैरक के एक अकूबत खाने में कैद है, तो वो अपने कमरे की तरफ जाने से पहले उसे ऐसे एक नज़र देखने पर तुलकाया। वो खासे खराब तेवरों के साथ शीदे के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसका इबरतनाक हशर देखकर उसका गुस्सा खुद ही काफूर हो गया। शीदे का रस्सी से बंधा हुआ जिस्म बहुत गैर फितरी अंदाज में फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। इसका बदन जख्मों से चूर था, चेहरे पर वर्म आया हुआ था और दाहिनी रान की हड्डी टूट जाने के बायस वो सूज कर कुप्पा हो रही थी।
तकलीफ की शिद्दत से चीता इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ था। मुझसे पहले तुम लोगों ने इसका हुलिया बिगाड़ा हुआ है, अब मैं इसे और क्या सजा दूंगा? यही हो सकता है कि इसके गले पर छुरी फेर दी जाए। इसे देखकर जहांगीर ने आसूदा लहजे में कहा, इसके साथी पर मैं अपना काम करूंगा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि इसका मतलूब मुजरिम अगले दिन वहां पहुंचा दिया जाएगा। जहांगीर हंगामा खेज शहरी जिंदगी का आदी था। इसे स्टेशन 4 पर छाया हुआ ख्वाबनाक सन्नाटा बहुत हैरान कर रहा था। उसने सरगोशियाना लहजे में मुझसे शिकायत की कि वो ऐसी सुनसान जगह पर किस तरह रह सकेगा। मैंने उसे दिलासा दिया कि इसका क्लिफ्टन वाला फ्लैट कई दुश्मनों की नजरों में आ चुका था। इसका फौरी तौर पर वहां जाना किसी तरह मुनासिब नहीं था। किसी मुतबादल ठिकाने का बंदोबस्त होने तक इसका स्टेशन 4 पर रहना नागुज़ीर हो चुका था। हम लोगों की आमद की वजह से वहां बहुत महदूद से नकलो हरकत शुरू हो चुकी थी। अव्वल खान की रहनुमाई में हम जहांगीर के लिए तैयार किए गए कमरे में पहुंचे तो हैरान रह गए। वहाँ एयर कंडीशनर से टेलीविजन तक हर चीज मौजूद थी। मैं दिल ही दिल में अव्वल खान की मेहमान नवाजी का कायल हो गया। हम चारों को वहां बैठे हुए चंद मिनट हुए थे कि जहांगीर के लिए गर्मा गर्म खाने की ट्रे आ गई और वह हर तकल्लुफ को बालाए ताक रखकर अपनी शिकम सेरी में मसरूफ हो गया। मैं बहुत गौर से उसकी हरकत देख रहा था और सोच रहा था कि खुराक के ये चंद लुकमे हैं जो इंसान की बुनियादी जरूरत होते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ भी कमाता और खर्च करता है हकीकी मानों में इसके काम नहीं आता। इसके जरिए दूसरों की नजर हो जाता है। वो खाने में मसरूफ था कि वीरा के साथ सलमा वहां पहुंची। जहांगीर ने अचानक सलमा को अपने सामने देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके हाथ जहां थे वहीं थमके। दूसरी तरफ सलमा की आंखों से अचानक मौतियों की लड़ियां बह निकली थी। मैंने अपने खून आशाम दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी गुजारी थी। इस जंग में इंसानी जानों की कोई अहमियत थी ना इंसानी जज्बों का कोई गुजर। फिर भी इन दोनों की इस मुलाकात ने मेरा दिल यूं पानी पानी कर दिया कि मैं सबको अपने साथ आने का इशारा करता हुआ उस कमरे से बाहर निकलता चला गया। तुम मुझे क्यों बुला लाए? मैं वहीं रुककर इन दोनों का तमाशा देखना चाह रही थी। वीरा ने कमरे से बाहर आने के बाद एहतिजाज किया, इसे नई जिंदगी मिली है और तुम इसे तमाशा कह रही हो? मैंने उसे मुलामत की। ये दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो फिर घर में हर वक्त लड़ते क्यों रहते हैं? यह हकीकत है तो फिर वो तमाशा होता होगा। उसने हमारे साथ चलते हुए कहा। यह मशरिक है, अव्वल खान ने नरमी से कहा। यहाँ जिंदगी की यही रौनक होती है। जरा जरा सी बात पर बिफर कर बिखर जाना यहाँ का रवाज नहीं है। यानी ने बिल्कुल ठीक किया कि सबको बाहर ले आया। जिनके जाती लम्हे हैं किसी को इनमें मुदाखलत का हक नहीं है। वीरा कुछ न समझने वाले अंदाज में अपना सर छटक कर रह की। तुम गजाला को घर पर अकेला छोड़कर आई हो? अचानक सुल्तान शाह ने रुखाई से पूछा। वो अकेली नहीं है, वहां अबरार और दीन मोहम्मद भी मौजूद हैं। वो छत पर होंगे, घर में तो सिर्फ वही है। तो क्या हुआ? वो कोई नाबालिग लड़की नहीं है। वो सलमा की देखभाल की वजह से इतनी थकी हुई थी कि हमारे साथ आने पर रजामंद नहीं हुई। वो अपना कमरा बंद करके गहरी नींद सो रही होगी। सुल्तान शाह से बात करते करते वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। ये बताओ कि क्या ये दोनों अब स्टेशन 4 पर ही रहेंगे? फिलहाल यही प्रोग्राम है, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। जबरदस्त प्रोग्राम है, हमारे घर में ज्यादा मेहमान नवाजी की गुंजाइश नहीं है। यह गजाला का हौसला है कि उसने सलमा को सह लिया। मुझे वहशत होने लगी थी। वीरा ने अपने दिल की बात खुलकर कह दी थी। मैंने इस बारे में अपनी जुबान बंद रखी। जहांगीर के लिए इसका घर महफूज नहीं रहा था। हमने उसे अगवा करने वालों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता था कि इस नाकामी पर सोबराज का क्या रद्द अमल होगा। ईरान के किसी सरहदी कस्बे से कराची आने के बाद वो अपनी नाकामी के अजाले के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता था। घर की तरह शहर का कोई होटल भी इन दोनों के लिए महफूज नहीं था। ले देकर हमारा घर इनके लिए बेहतर पनाहगाह साबित हो सकता था। वहां इन दोनों की तवील कयाम से हमारे लिए बहुत संगीन मसाइल पैदा हो सकते थे। मैं अपनी गहरी दोस्ती की बिना पर जहांगीर और उसकी बीवी को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वीरा, गजाला और सुल्तान शाह के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। मजमूई तौर पर हमारे घर का माहौल घुटन का शिकार हो जाता। इसी के साथ आज़ादियां भी महदूद हो जाती। अव्वल खान ने इनके लिए फराग दिली का मुजाहरा करके हमारी एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। हम बातें करते हुए कैदियों वाली बैरक तक पहुंच गए। मैं अव्वल खान के साथ ड्राइविंग रूम में आ गया। वीरा सुल्तान शाह को साथ लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां शीदे को रखा गया था। खाना आने वाला उसे अपनी आंखों से देखने का मुतमनी था। जलाल ने इस मामले में जिस दिलचस्पी का मुजाहरा किया वो किसी वजाहत का मोहताज नहीं था। उसने मेरे एक इशारे पर कासिम को हमारे हवाले करके जहांगीर की वापसी में अहम तरीन किरदार अदा किया था। बाद के वाकयात ने साबित कर दिया था कि हमने जहांगीर तक पहुंचने में जरा सी भी ताखीर की होती तो सोबराज इस पर हाथ डाल चुका होता। मैंने जलाल को फोन किया तो वो सद्दफ मेंशन पहुंच चुका था। सलाम दुआ के बाद उसका पहला सवाल जहांगीर के बारे में था। मैंने उसे तफसील बताई तो वो खुश हो गया। खुदा का शुक्र है कि उस सोबराज के चुंगल में जाने से बाल बाल बच गया। तुम्हें बर वक्त कासिम का ख्याल कैसे आ गया? शीदे पर मेहनत बराबर ना होने के बाद एक वही नाम सामने रह गया था। मैंने जवाब दिया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जहांगीर उसी के घर से बाजियाब हो सकेगा।
वो मेरे आदमियों की तहवील में रहता तो रूटीन में अब उसकी बारी भी आई होती। हमारी पूछ के सोबराज की ज़ात तक महदूद रहती और वक्त हाथ से निकल जाता। वो कह रहा था, बस ये बुरा हुआ कि सोबराज एक मरतबा फिर भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने उसे या वीरा को सुल्तान शाह की समागत के बारे में नहीं बताया कि उसने बुखलाट में दूसरा फायर सोबराज की गाड़ी के टायर पर किया था। इन दोनों के लिए इतना काफी था कि सुल्तान शाह की फायरिंग के बावजूद सोबराज निकल गया। वीरा को असल वाकई की भनक मिल जाती तो वो सुल्तान शाह का जीना हराम कर सकती थी। ये बात काबिल गौर है कि हम लोगों की सारी तदाबीर के बावजूद वो सरहद पार करके ईरान जाने में कामयाब हो गया। मैंने तफक्कुर अमेज लहजा में कहा, अब वो कराची लौट आया है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस बार वो सरहद पार न जा सके। वो बहुत अयार और झूठा है। हो सकता है कि कराची में छुपा हुआ हो और उसने कासिम से झूठ बोला हो। उसने अपना ख्याल जाहिर किया, इस बारे में मुझे कोई शुबा नहीं है। वो कराची के कुर्बो जवार में होता तो कामयाब अगवा की खबर मिलने के बाद कासिम के घर तक पहुंचने में इतनी देर न करता। आसार बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इसे अपने गिर्द मौत के साए फैलते हुए नजर आ रहे हैं। जहांगीर के जरिए मुझे घेरने की कोशिश में नाकाम होने के बाद वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेगा। पहली फुर्सत में भागने की कोशिश करेगा। ज्यादा इम्कान यही है कि वो इस बार भी ईरान का आजमूदा रास्ता इख्तियार करेगा। कराची से निकलने वाले रास्तों की मुसलसल निगरानी हो रही है। कच्चे और गैर रवायती रास्तों को सील करना मुमकिन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि नाकाबंदी ज्यादा सख्त हो जाए। तुम भी कासिम पर मेहनत करो, इस वक्त बहुत अहम हो रहा है। दूसरे क्या कह रहे हैं, मैंने पूछा। अभी वो सदर मेंशन के असाब शिकन माहौल से खौफजदा किए जा रहे हैं। मैं कुछ देर आराम करने के बाद इन दोनों का रुख करूंगा। चाहो तो तुम भी मेरे साथ शामिल हो सकते हो। तुम्हारे बेशतर सवाल बहुत तीखे और बरजस्ता होते हैं। मैंने उसे सदर मेंशन का चक्कर लगाने का वादा किया और हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई। उसे ताज़ा तरीन वाक़यात से बाखबर करने के बाद मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। इस दौरान में वीरा और सुल्तान शाह वापस आ चुके थे। गालिबन इस दौरान में सुल्तान शाह ने उसे सारे वाक़यात से आगाह कर दिया था। मैंने सुल्तान शाह की संगीन गलती को छुपा लिया था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वह एहसास उसके सर पर मुसल्लत हो गया था, जिसके नतीजे में उसकी फितरी खुशदिली रुखसत हो चुकी थी और वह वीरा के मुकाबले में दबा दबा नजर आ रहा था। शीदे पर बिला वजह इतनी मेहनत की गई। कुछ देर की बोझल खामोशी के बाद वीरा बोली, शायद कासिम इससे ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है। इस वक्त सिर्फ शीदा हमारे हाथ आया था। मैं हैरान हूं कि बुरे हाल को पहुंच जाने के बावजूद वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने ऐसे सख्तियान मुजरिम बहुत कम देखे हैं। इसी वजह से सोबराज ने उसे कासिम फिशरीज में लगवाया होगा। अव्वल खान बोला, जराइम की दुनिया में ऐसे जीदार लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी जान दे देते हैं लेकिन जुबान नहीं खोलते। मुझे हैरत है कि इसे सोबराज की हदायत पर कासिम ने अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रखा, लेकिन शीदा सोबराज से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। सोबराज अताब में आने से पहले दोहरी जिंदगी गुजार रहा था। मैंने कहा, एक तरफ इसे इक्तदार के अवानों में रसाई हासिल थी तो दूसरी तरफ कोबरा के रूप में मुजरमों से इसके गहरे रवाबत थे। मेरा अंदाजा है कि इन दिनों शीदा इसकी नजरों में आया होगा। इसे कानून से पनाह और गुजारे के लिए रोजगार की जरूरत थी। सोबराज काम के आदमियों की तलाश में था। शीदा आराम से कासिम फिशरीज में खप गया। हर तरफ से राब्ता खत्म होने के बाद वो इससे काम लेने पर मजबूर हो गया।